Hello and welcome to Simplifying CSAT for UPSC. So, up till now, we have completed the two videos of time and work, and we have understood the basics in the first video and how to solve the questions by using two formulas. Up till now, we have understood and we have done up till basics and some few basic questions, and we were doing some questions. So, now we will proceed further. So, in the last class, I gave you this question to solve by your own. So, I hope you must have solved from the PDF this question from your own and have got the answer. If you have any doubt, I will discuss this. And again, one thing I would like to tell you that you can access the PDF by joining my Telegram channel from the comment section. In the comment box, I have pinned the link of my Telegram channel so you can access the PDF from there. So without wasting much time, let's start the new part. This is part 3 of the time and work video. So let's begin. So this is the question from where we have to start. Just a second. Just a second. Okay, so let's begin. So a contractor, what were the, let me give you a brief about what we were doing. We were using the formula of man into days is equal to total work, and we were using another formula m1 d1 h1 w1, here e1 is equal to m2 d2 h2 e2 upon w2. We were using this formula to solve these type of questions, and up till now I have told you only two formulas. One was, first formula was total days is equal to total work upon total efficiency, and second one was m1 d1 h1 e1 upon w1 is equal to m2 d2 h2 e2 upon w2, and man into days is equal to total work. So we will solve the questions from now onwards by using only these formulas which I have told you in the basics class. So let's begin with this question. A contractor employed a contractor employed 25% to complete a work in 40 days. पहली लाइन पढ़ो क्या है. कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 25% टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज. एक कॉन्ट्रैक्टर ने उसको एक काम करना था 40 डेज तक, तो उस काम को 40 डेज उसका टोटल डेज थे जितने में वो काम ख़त्म होगा, तो उसने कितने परसेंट एम्प्लॉय करे? 25%. बट आफ्टर 24 डेज, ये पढ़ो, आफ्टर 24 डेज he found that only 1/3 of the work had completed. After 24 days he found that only 1/3 of the काम ही खत्म हुआ. तो टोटल काम हम क्या कर रहे थे? टोटल काम 1 यूनिट था, तो 1/3 खत्म हुआ, तो 1 - 1, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 2/3. ये हमारा क्या हुआ? रिमेनिंग वर्क हुआ. हमारा रिमेनिंग वर्क क्या हुआ? ये हुआ 2/3 इज रिमेनिंग वर्क. तो कॉन्ट्रैक्टर को काम टोटल 40 दिन में करना था, बट आफ्टर 24 डेज उसने देखा कि सिर्फ 1/3 काम हुआ है. देन अब यहाँ पे पढ़ो, देन हाउ मैनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द रिमेनिंग 4 days बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम. हाउ मैनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द रिमेनिंग 4 days बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम. अब ये क्या कह रहा है? कितने और पर्सन वो एम्प्लॉय करे. हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क ऑन टाइम, नहीं, 4 days बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम. मतलब शेड्यूल्ड टाइम हमारा क्या था? 40 days. तो 4 days उससे पहले ख़त्म हो जाए. जो हमारा शेड्यूल्ड टाइम है यानी 40 days उससे पहले ख़त्म करना है, तो 40 - 4, तो हमें काम कितने 36 days में ही वो ख़त्म करने को बोल रहा है कि हम कितने और पर्सन्स एम्प्लॉय करें कि काम हमारा 36 डेज में ही ख़त्म हो जाए. सो कैसे करेंगे? हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा? आफ्टर 24 डेज, तो 24 दिन तक तो
25% ही काम करेंगे। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। ये फॉर्मूला ही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखो ये हो गया हमारा M1 25, ये हो गया हमारा D1, क्योंकि 24 डेज तक तो 25% ही काम कर रहे हैं। और वर्क कितना कंप्लीट हुआ, देखो 1/3 ही कंप्लीट हुआ, तो W1 की जगह 1/3 रख दिया। तो ये M1, ये D1, ये W1। अब हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क 4 डेज बिफोर शेड्यूल्ड टाइम। तो हमें टोटल काम उसको 36 डेज में ख़त्म करना है, तो कितने मोर पर्सन एम्प्लॉय करे, तो 25 तो करेगा ही, प्लस लेट एक्स नंबर बी द मोर, लेट एक्स बी द पर्सन ही शुड एम्प्लॉय मोर। एक्स पर्सन वो ज़्यादा एम्प्लॉय करता है, तो हमें कितने मोर करने, मोर पूछा है ना, तो 25 तो करने ही करने रिमेनिंग काम को ख़त्म करने के लिए, बट 25 प्लस एक्स लेंगे। तो अब ये जो 25 प्लस एक्स है, ये ही तो हमारा M2 हो गया जो अभी तक हम कर रहे थे। 25 प्लस एक्स, 25 तो लेने ही लेने, उसके बाद कितने मोर हैं, तो टोटल तो 25 प्लस एक्स लगेंगे ना काम को ख़त्म करने के लिए, वो 25 कर रहे हैं, उसके बाद कितने, तो ये हो गया हमारा M2। अब हमें D2 हमारा क्या होगा, देखो समझो, काम पहले ख़त्म होना था 40 डेज तक, बट 24 डेज तो निकल गए, बट वो कह रहा है काम को 36 डेज में ख़त्म करना है, ना कि 40। तो हमारा D2 क्या हो जाएगा, 36 में कितने दिन निकल गए, 24, तो बचे कितने, यही तो हमारा D2 होगा रिमेनिंग डेज। तो 36 माइनस 24, यही आपका क्या हो जाएगा, D2। तो M2D2, अब 1/3 वर्क कंप्लीट हो गया था, वर्क बचा कितना, 2/3, यही हमारा 2/3 क्या हो जाएगा, यही हमारा W2 हो जाएगा। अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ये फिर से मैं PDF में एडिट कर दूंगा, ये परसेंट्स होगा, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 75, ये डेज नहीं होगा, ये होगा 75 पर्सन्स होगा यहाँ पे, इट्स विल नॉट बी डेज, इट विल बी पर्सन्स। आई विल करेक्ट इट इन द PDF व्हेन आई विल अपलोड इट इन द टेलीग्राम चैनल। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सिमिलरली हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखो ऐसे ही किया था, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 80% टू कंप्लीट अ वर्क इन 150, बट आफ्टर 90 डेज, तो हम लोगों ने 80 × 90, ही फाउंड दैट ओनली 25% इज कम्प्लीटेड, देन हाउ मैनी, इसमें रिमेनिंग वर्क ऑन टाइम पे था, तो 150 में 90 निकल गए, 150 माइनस 90, D2 कितना आ गया था हमारा 60, बट उसमें हमें 40 माइनस, यहाँ पे आप ये समझो, हमने इस क्वेश्चन में हमने जस्ट अ सेकेंड, हमने इसमें यहाँ पे 40 माइनस 24 नहीं किया, क्योंकि हमें काम 40 डेज में नहीं, 4 डेज बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, ये जो लाइन लिखी है, ये जो लाइन आपकी लिखी है 4 डेज बिफोर शेड्यूल्ड टाइम, इस वजह से हमने 36 माइनस 24 किया। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर। अब ये हमारा टाइप 1 ख़त्म हुआ इस तरीके के क्वेश्चन का। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया था, क्या, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, वही लिखा है देखो, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चंस को टाइप वाइज सेग्रीगेट कर दिया है, जिससे आपको जब आप पढ़ोगे और क्वेश्चंस लगाओगे तो एक फॉर्मेट में आप मतलब जब पढ़ो, जैसे मैं आपको एक टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 8, टाइप 15 तक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, टोटल टाइप हमारे 14-15 जाएंगे। बट आफ्टर इनको करने के बाद आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन वी विल सॉल्व UPSC PYQs ऑल्सो। अब देखो, and we will solve some more questions also like of SSC, CGL and CAT, because now in this 2023 prelims we see that the level of the CSAT was quite high, so we will solve some good questions from other institutes also. From other institutes I will upload the questions in Telegram. Okay, so let's move on to the next question. पढ़ो क्वेश्चन को, 60% can do a work in 50 days। 60% मतलब मैन और डेज पता है आपको, किसी काम को 60% कर सकते हैं 50 डेज में, बट
बट ऑन द इंटरवल ऑफ 10 days 5% लेफ्ट द वर्क कॉन्टिन्यूसली। अब इस लाइन को पढ़ो आप, बट ऑन द इंटरवल ऑफ 10 days 5% लेफ्ट द वर्क कॉन्टिन्यूसली। हर 10 दिन बाद 5 लोग काम को छोड़ के जाते हैं। इसका मतलब ये, ऑन द इंटरवल ऑफ 10 days हर 10 दिन बाद 5% लीव द वर्क कॉन्टिन्यूसली। then in how many days total work will be completed। अब टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा अगर हर 10 दिन में 5 लोग काम छोड़ जाते हैं, 5%। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारा पहले निकालो टोटल वर्क क्या होगा। आपको ये पता है टोटल परसेंट तो 60 थे और टोटल डेज कितने लगने थे 50। तो 60 इंटू 50 ये करके आप टोटल वर्क नहीं निकाल लोगे। यही तो लगाया है, मैन इंटू डेज को मल्टीप्लाई करो, TW आ जाएगा। मैन दिया, डेज दिया, टोटल वर्क निकाल लो। तो 60 इंटू 50 कितना होगा 3000। देखो यहाँ पे, तो यही तो हमारा टोटल वर्क हो गया। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3000। अब देखो आप यहाँ से, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट ये तो टोटल वर्क था। अगर हर 10 दिन बाद 5 लोग काम छोड़ रहे हैं तो देखो हमें 50 डेज तक टोटल वर्क चलेगा हमारा। अब हम इसको पार्ट वाइज करते हैं। देखो पहले 10 दिन तक तो 60 लोग काम करेंगे, स्टार्ट के 10 दिन ये हो गए हमारे पहले 10 दिन, फर्स्ट 10 डेज। अब उस तो 60 इंटू 10 करोगे आप, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैन इंटू डेज टोटल वर्क कितना हुआ। तो पहले 10 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया 600। कैसे, 60 इंटू 10, मैन इंटू डेज। मैन 60 आदमी ने 10 दिन तक काम किया तो 600 वर्क कर दिया। टोटल वर्क कितना करना है हमें 3000। देखो अब 10 दिन हो गए तो 5 आदमी काम लीव कर देंगे, 5 आदमी काम को छोड़ जाएंगे। तो अब कितने परसेंट्स बचे 55। पहले 60 थे, 5 माइनस कर दो, 60 में 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 55। तो अब 55% बचे। अब 55% कितने दिन तक काम करेंगे, फिर 10 दिन तक काम करेंगे। तो मैन इंटू डेज कितना आया 550। टोटल वर्क आया ये हमारा, ये 550 क्या है हमारा इस समय, यही हमारा वर्क है। तो अगले 10 दिन में कितना काम हुआ 550। देखो पहले 10 दिन में काम हुआ 600, अगले 10 दिन में काम कितना हुआ 550। ठीक, अब ये पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन गुजर गए। अब देखो आप, फिर अगले 10 दिन, फिर दूसरे 10 दिन जैसे ही गुजरे उसके बाद 5 लोग फिर काम छोड़ जाएंगे। तो अब पहले 60% थे, फिर 55 हुए, अब कितने होंगे 50। ये 50 लोग, अब 50 लोग हैं, ये फिर कितने दिन तक काम करेंगे 10 दिन तक। तो कितना वर्क आया 500। ठीक है, तो अब टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ, पहले 600, फिर 550, फिर 500। वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, अब फिर अगले 10 दिन हो गए तो कितने लोग बचे 45 इंटू 10, 10 दिन तक करेंगे तो कितना वर्क हुआ 450। फिर अगले 10 दिन बाद कितने लोग बचे 40 इंटू 10, 45 लोग फिर काम छोड़ जाएंगे तो 45 से 40 और 10 दिन तक करेंगे तो 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 इंटू 10 कितना होगा 400। यही हमारा वर्क होगा अगले 10 दिन में। तो पहले 10 दिन में कितना काम हुआ 600, अगले में 550, फिर 500, फिर 450, फिर 400, अगले में फिर 350। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करना, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करो, कितना काम आपका कंप्लीट हो गया, कितना काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 350 तक सिर्फ देखना आप, इस लाइन तक आप देखना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 चीज़ों को जब आप समअप करोगे तो कितना वर्क आ गया, इन सबको जोड़ने पे आएगा 2850। आप खुद से भी ट्राई करना, मैंने कर दिया है फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बट आप खुद से भी ट्राई करना। तो इन सबको जोड़ने पे कितना आया 2850। अब हमारा टोटल वर्क कितना था 3000, उसमें से कितना कंप्लीट हो गया 2850। ठीक है ना। अब देखो ये हमने कब तक 2850 जो वर्क हुआ है ये कब तक कंप्लीट हुआ, जब तक 35% बचे थे। स्टार्टिंग कितने परसेंट थे 60, हर 5% काम छोड़ रहे हैं 10 दिन के इंटरवल में,
तो अब कितने परसेंट बचे, 35। तो 35% 10 दिन तक करेंगे तो हमारा टोटल वर्क अभी तक कितना आया, 2850। अब अगले, अब देखो आप 10 दिन हो गए, इसके बाद फिर 5 लोग काम नहीं छोड़ेंगे, तो 35 माइनस 5 करोगे तो कितना, फिर 5 लोग छोड़ गए, 30% ही तो बचे, यही तो हमारे परसेंट्स बचे। अब आपका ये देखो 3000 काम था, कितना काम हो गया है, 2850। 3000 टोटल वर्क था, कितना काम हो गया, 2850। कितना वर्क बचा, 150। अब आप एक हिट एंड ट्रायल लगाओ, 30% करेंगे काम क्योंकि 5 छोड़ जाएंगे, जो रूल चल रहा है 10 दिन हो गए, 5 छोड़ गए, 30%, और काम कराना है आपको 150। तो 30 में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि 150 आ जाए, तो 5 से करोगे, इतना तो कॉमन सेंस है यार। तो कितने दिन तक, ये 30% लास्ट के कितने दिन तक काम करेंगे, अब ये 10 नहीं, अब ये 5 दिन तक ही काम करेंगे। देखो सब में हम 10 कर रहे थे, बट यहाँ हमने 5 किया, क्यों, क्योंकि अब काम ही 150 बचा है। 3000 काम था, 2850 हो गया, तो बचा कितना, 150, और कितने परसेंट को करना है, 30, तो कितने डेज में होगा, 30 इंटू 5 डेज तक करें तो 150 आ जाएगी। अब आप सबको जोड़ोगे तो 3000 हो गया। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम होगा, अगर परसेंट छोड़ रहे हैं। अगर देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, ये अगर परसेंट्स ना छोड़ते, हर 10 दिन के इंटरवल में 5% काम ना छोड़ते, वर्क ना लीव करते, तो हमारा वर्क कितने दिन में पूरा, टोटल वर्क हमारा कितने दिन में कंप्लीट होता, टोटल वर्क हमारा 50 डेज में कंप्लीट हो जाता। बट यहाँ पे 60% कॉन्टिन्यूसली तो काम कर नहीं रहे, तो हमारा टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, हमें ये निकालना है। तो 10 10 10 10 10 10 ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 60, यहाँ तक 60 प्लस 5, तो ये कितने डेज हो गए, 65। देखो भाई, अगर परसेंट्स नहीं छोड़ते, ज़्यादा परसेंट करते, तो हमारा 50 डेज में हो रहा था ना, बट क्वेश्चन पलट दिया उसने कि आपको वर्क उतना ही कराना है, बट हर 10 दिन में 5 लोग काम छोड़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा दिन लगेंगे, कितने लगेंगे, 65। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा टाइम लेके समझाया है, बिकॉज क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट था, नया टाइप था, देखो आप, इसीलिए टाइप 2 था। अब ऐसे फर्दर क्वेश्चंस के लिए इस क्वेश्चन में वी हैव टेकन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, क्योंकि अगले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करने में वी विल बी एबल टू सेव आवर टाइम, दैट्स वाई। सो अब इसी टाइप के क्वेश्चन से देखो, एंड इन दिस वीडियो आई विल कीप इट शॉर्ट बिकॉज इट्स अ न्यू टाइप, सो आप खुद से भी प्रैक्टिस करना। सो आई विल डिस्कस ओनली फ्यू क्वेश्चंस। अब देखो आप इसको, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन, 50% कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। देखो उसमें 60% 50 डेज में कर रहे थे, इसमें 50% कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। बट अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की डिमांड समझो, बट ऑन द इंटरवल ऑफ 10 डेज 10% लेफ्ट द वर्क कॉन्टिन्यूसली। हर 10 दिन के इंटरवल में, हर 10 डेज के इंटरवल में 10% वर्क को छोड़ जाते हैं। तो वही क्वेश्चन है, उसमें 10 डेज के इंटरवल में 5% छोड़ रहे थे, इसमें 10 छोड़ना है। देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, यही क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज। देखो भाई, अगर 50% कॉन्टिन्यूसली काम करते तो टोटल वर्क कितने डेज में फिनिश हो जाता, 30 में। बट अब हर 10 दिन के इंटरवल में 10% लीव कर रहे हैं वर्क को। सो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देन इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब देखो आप, सबसे पहले हमने क्या प्रोसेस सीखा था, टोटल वर्क हमारा कितना होगा वो निकाल लें। तो वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको जो प्रीवियस स्लाइड में विच फॉर्मूलाज वी वर डूइंग, मैन इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो मैन कितने, 50, कितने दिन तक टोटल काम होना था, 30, तो कितना हुआ, 1500 आएगा, 5 3 जा 15, 1500, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क हमारा 1500 है, यही तो टोटल वर्क है। अब ये कह रहा है हर 10 दिन के इंटरवल पर 10% लीव द वर्क कॉन्टिन्यूसली। अब देखो पहले 50 डेज तक 10% काम करेंगे,
तब मतलब पहले 50% 10 दिन तक काम करेंगे, पहले 10 डेज तक 50 लोग काम करेंगे, तो 50 इंटू 10 मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये आ गया कितना 500। अब 10 दिन हो गए, 10% काम छोड़ जाएंगे, देखो 10% लीव द वर्क कॉन्टिन्यूसली 10 दिन के इंटरवल पे ऑन द इंटरवल ऑफ 10 डेज। तो अब देखो आप, अब कितने परसेंट्स बचे, 50 माइनस 10 40। अब वो कितने दिन तक करेंगे 10, तो 400, 40 इंटू 10 400। फिर 10 डेज के इंटरवल पर 10% विल लीव द वर्क, तो कितने बचे 30। अब आप देखो आपको टोटल वर्क 1500 है, तो ये आपका एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपका वर्क, इनको जब आप समराइज करोगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, देखो हमने पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था, यहाँ पर हमने जब समराइज किया था तो हमारा आया था यहाँ तक 350 तक, 2850 ही तो आया था। हमारा वर्क से ज़्यादा एक्सीड ना हो जाए, तो ये आपको कॉमन सेंस है। अभी कितना हुआ है 500, 4 900, फिर 300, 50 40 30, हर 10 दिन तक 10% छोड़ रहा है, तो 50% ने करा, फिर 40 ने किया, फिर 30 ने किया, तो 500 4 900 900 3 1200। फिर अगले 10 दिन में 10% छोड़ जाएंगे, 10 दिन तक 20 लोग काम करेंगे, अब पहले 30 कर रहे थे, अब 20 करेंगे, तो 5 4 900 1200 1400। अब देखो अभी तक आपका कितना वर्क हो गया 1400। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा नहीं, अब देखो आप कितना वर्क बचा आपका, टोटल वर्क था 1500, हो गया 1400, तो बचा कितना 100। अब देखो लास्ट लाइन को पढ़ो, कितने परसेंट ने लास्ट दिन तक काम किया 20, फिर कितने लोग काम छोड़ जाएंगे 20 में, 10 डेज पे फिर 10% काम छोड़ जाएंगे, तो बचेंगे कितने लोग 10% ही तो बचेंगे। और कितना वर्क कराना है, वर्क कितना कराना है 100, परसेंट कितने बचे 10, तो 100 कैसे लाओगे, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क, ये कितना है, ये आपका 10 है, ये डेज निकाल लें, ये कितना है टोटल वर्क 100 ही तो कराना है, तो ये 10 ही तो होगा, 10 इंटू 10 100 होता है, और आपको 100 ही बचा वर्क कराना है, तो इसको हम यही तो कर देंगे 10 इंटू 10, देखो 10 इंटू 10। तो अब पूछा है कितने दिन में काम हो जाएगा, देखो अगर परसेंट्स काम ना छोड़ते तो कितने दिन में होता 30, तो ये तो ज़्यादा ही में होगा, तो 10 प्लस 10 20 30 40 प्लस ये 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 इंटू 5 टाइम्स कितने दिन 50 डेज, देखो यही आंसर हो गया हमारा। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो आप ये क्वेश्चन पढ़ना, ये थोड़ा सा आप डिफरेंट टाइप है, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें वो वाला फॉर्मूला वही लगेगा बट कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 सोल्जर फॉर 31 डेज, 400% के लिए 31 डेज तक सफिशियंट फूड है। आफ्टर 28 डेज, देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनको मैं आपको बाद में कराऊंगा, इसमें मुझे एक चीज़ बतानी है, कॉन्सेप्ट वही है वी हैव डिस्कस, बट ये मैं थोड़ा सा आपको बाद में कराऊंगा। आई विल नॉट फॉरगेट, यू कीप प्लीज़, अगर आपको लगे कि आई विल नॉट फॉरगेट, बट अगर आपको लगे तो यू कैन टाइप इन द कॉमेंट ऑल्सो, मैं इसको बाद में डिस्कस करा दूंगा, मुझे याद है 3rd और 4th टाइप 2 में ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बाद में डिस्कस कराऊंगा, बस 2 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ उसी रिदम में बने रहो जिसमें आप कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी एक अलग चीज़ बतानी होगी। अभी आपका रिदम कंटिन्यू है तो उसी टाइप में हम लोग क्वेश्चंस करें, क्योंकि जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो आई डोंट वांट टू फ्लक्चुएट और गो अगेंस्ट द रिदम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी आर फॉलोइंग राइट नाउ। बाकी मैं करा दूंगा कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं है। ओके अभी ये क्वेश्चन देखो, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। This question was asked also in UPSC. It's a PYQ, similar PYQ. It's a kind of a similar PYQ asked in CSAT.
सो इट्स अ गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, इसी टाइप पर पूछा गया था सम ईयर्स बैक. अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 men फॉर अ वर्क. 200 men फॉर अ वर्क. एक कॉन्ट्रैक्टर ने 200 पर्सन्स को एम्प्लॉय किया किसी काम के लिए. दे फिनिश 5/6 ऑफ द टोटल वर्क इन 10 days. 10 दिन में उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर दिया? 5/6 ऑफ द टोटल वर्क. अब टोटल वर्क क्या होगा? 1 में 5/6 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 1/6. इतना आपको कॉमन सेंस से स्ट्राइक अप कर जाना चाहिए कि अगर 5/6 वर्क कंप्लीट हो गया है, 5/6 कंप्लीट हो गया 10 दिन में, तो बचा कितना वर्क? तुरंत आप करो 1 - 5/6 इक्वल टू 1/6. ये क्या होगा? 1/6. यही होगा हमारा रिमेनिंग वर्क. इतना अब आपको, आई होप आपको समझ आ रहा है, तो आप इतना तुरंत रिलेट कर पाते होगे लैंग्वेज को पढ़ के, बिकॉज वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आई एम गोइंग अ वेरी वेरी स्लो. यू कैन ऑल्सो सी आई एम नॉट गोइंग फास्ट. तो दे फिनिश 5/6 ऑफ टोटल वर्क इन 10 days. 200 मैन एम्प्लॉय करे थे, उन्होंने 5/6 ऑफ टोटल वर्क कंप्लीट करा इन 10 days. बट ड्यू टू रेन द वर्क वॉज स्टॉप्ड. देखो, ड्यू टू रेन द वर्क वॉज स्टॉप्ड एंड 2/5 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड वॉज डिस्ट्रॉयड. इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, वापस से पढ़ो. 2/5 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड वॉज डिस्ट्रॉयड. समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? 2/5 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड. कितना कंप्लीट हुआ था? 5/6. ये क्या कह रहा है? कितना वर्क डिस्ट्रॉयड हुआ? वर्क डिस्ट्रॉयड आप इसको कैसे लिखोगे? वर्क डिस्ट्रॉयड इज 2/5 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड. वर्क कंप्लीटेड. अब कितना डिस्ट्रॉयड हुआ? डिस्ट्रॉयड वर्क क्या होगा? 2/5 ऑफ वर्क कंप्लीटेड कितना था? 5/6. तो ये 5 से 5, 2 से 1, 2 3 जा 6. तो कितना डिस्ट्रॉयड हुआ? 1/3 इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रेन. ये समझो आप, क्वेश्चन ये कह रहा है 5/6 कंप्लीट हो गया था, बट रेन हो गई, उसकी वजह से जो कंप्लीट हुआ था 5/6, ये तो कंप्लीट हुआ था, टोटल नहीं. 2/5 ऑफ द टोटल वर्क नहीं कह रहा है कि 2/5 ऑफ द टोटल वर्क, ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है 2/5 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, मतलब 2/5 ऑफ 5/6. तो 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 6. अब देखो, अब वर्क डिस्ट्रॉयड हो गया. आफ्टर रेन ओनली 150 when कम ऑन द वर्क. पहले देखो, क्वेश्चन को मैं फिर समराइज करता हूँ. आई एम गोइंग अ वेरी वेरी स्लो. अ कॉन्ट्रैक्टर ने एम्प्लॉय करे 200 पर्सन्स किसी काम के लिए. अब उसने देखा उन्होंने 10 दिन में, 10 days में उन्होंने कितना वर्क कर दिया? उन्होंने 10 days में वर्क कर दिया 5/6. ठीक, तो बचा कितना? 1/6. स्ट्राइक करना चाहिए तुरंत. अब रेन हो गई, रेन की वजह से 2/5 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, मतलब 5/6. 2/5 इंटू 5/6 डिस्ट्रॉयड, तो 2 1 2 3. तो कितना डिस्ट्रॉयड हो गया? 1/3. कंप्लीट कितना हुआ था? 5/6 हुआ था, उसमें से 1/3 डिस्ट्रॉयड हो गया. उसके बाद जब रेन खत्म हो गई, आफ्टर रेन, देखो आफ्टर रेन, अब पहले 200 मैन आ रहे थे काम करने, अब सिर्फ 150 मैन आए कम ऑन वर्क. अब ये क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल फिनिश. देखो, अब काम कितने दिन में खत्म होगा? तो देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था M1D1/W1, इसमें क्योंकि तीनों हैं, मैन, डेज और वर्क, M2D2/W2. ठीक है. देखो, अब आप इस क्वेश्चन को समझो. देखो कैसे. 200% ने, पहली लाइन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मैन फॉर अ वर्क, दे फिनिश इतना ऑफ द वर्क इन 10 days. तो उन्होंने 10 days तक तो 200 आदमी ने ही काम किया होगा ना, वही जो हम कर रहे थे, जो हम पहले कर रहे थे पुराने क्वेश्चंस में, कि 25 आदमी ने 24 days तक काम किया हुआ, तो 10 दिन तक तो कितने आदमी ने? तो M1 और D1, M1 हो गया 200, D1 हो गया 10. अब ये कितना वर्क कंप्लीट हुआ ये देखो आप. दे फिनिश 5/6 ऑफ द टोटल वर्क इन 10 days.
तो M1D1W1 ये हो गया, 5/6 आएगा W1 की जगह। तो अब ये कह रहा है रेन के बाद ओनली 150 men कम ऑन वर्क, तो M2 हमारा क्या हो गया 150। हमें निकालना है कितने डेज में काम होगा इंटू एक्स, और W2 अभी हमें नहीं पता है। W2 हमें पता है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे W2 हम निकालेंगे। हमें निकालने हैं क्या, हमें निकालने हैं इन हाउ मेनी डेज। डेज मतलब x मान लिया, डेज मतलब D2 निकालना है हमसे। क्या पूछ रहा है D2, ये मैंने आपको करा दिया है, तो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस कि क्या निकालना है। तो D2 को हम x मान रहे हैं, D2 को हमने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। अब देखो स्टार्ट में कितना वर्क कंप्लीट हुआ था 5/6, तो स्टार्ट में लेफ्ट कितना था मैंने बताया था 1 - 5/6 आप करोगे तो कितना बचेगा 1/6। अब वर्क डिस्ट्रॉयड कितना हुआ 2/5 इंटू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड 5, तो 2/6 बचा। यही देखो डिस्ट्रॉयड वर्क कितना हुआ 2/6, तो टोटल वर्क कंप्लीट कितना हुआ था 5/6। बट यार 5/6 तो कंप्लीट हुआ था ना, बट डिस्ट्रॉयड भी तो हो गया। जब 2/6 डिस्ट्रॉयड हो गया तो कंप्लीटेड 5/6 थोड़ी बचा। वर्क लेफ्ट कंप्लीटेड कितना बचेगा 5/6 माइनस 2/6, तो कितना बाया 3/6, मतलब 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो टोटल तो हुआ था 5/6, बस उसमें से भी 2/5 2/6 चला गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो बचा कितना कंप्लीटेड तो इतना ही हुआ ना। अब हम लोग 5/6 को कंप्लीटेड थोड़ी लेंगे, क्योंकि 5/6 तो था, बट उसमें से 2/6 डिस्ट्रॉयड भी तो हो गया। देखो डिस्ट्रॉयड हो गया ना 2/6, तो 5/6 माइनस 2/6 कितना बचा वर्क कंप्लीटेड 3/6, मतलब 1/2। तो वर्क लेफ्ट कंप्लीटेड इतना कंप्लीट हो गया, कितना कंप्लीट हो गया 3/6, मतलब 1/2 कंप्लीट हो गया। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क कितना होता है 1, कंप्लीट कितना हो गया 1/2, रिमेनिंग कितना हुआ, कितना बचेगा रिमेनिंग, स्ट्राइक करना चाहिए 1 माइनस 1/2। जब हाफ कंप्लीट हो गया तो हाफ ही तो बचेगा, तो अनकम्प्लीटेड कितना होगा 1/2। अब यही तो हमें W2 है हमारा, इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल फिनिश। W2 तो हमें पता करना था, होल वर्क W2 जब यहाँ रख दोगे, W2 की वैल्यू ही तो हाफ है, तो हम जब W2 देखो यहाँ रख देंगे तो M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। अब D2 निकाल लोगे, अब आप निकालोगे तो x कितना आ जाएगा, जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x आएगा 8। देखो यहाँ पे अब आप कुछ लोग गलती कर देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर फोकस करना। x आ गया 8, बट उसने ये नहीं पूछा है, ये आपका D2 जो आता है मैंने क्या बताया था, ये आता है D2 क्या है रिमेनिंग डेज। W2 कितने दिन में हुआ, जब 150% ने काम किया तो W2 हुआ ना, ये तो 1/2 वर्क हुआ, यही हमारा D2 आया। तो जो हमारा x बराबर 8 है, मतलब D2 ही तो x है, तो D2 बराबर जो 8 आया ये रिमेनिंग के लिए आया है। क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल फिनिश। तो होल वर्क में तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ, टोटल डेज पूछ रहा है, D2 तो रिमेनिंग डेज है, तो टोटल डेज कितना होगा, स्टार्ट के 10 डेज भी तो जोड़ोगे, 10 + 8। 150 आदमी ने तो यार 8 डेज तक काम किया, 150 ने 8 डेज तक किया, यही तो हमारा x8 आया था। बट स्टार्ट के 10 डेज भी तो जोड़ोगे, मोर थोड़ी पूछ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा होता हाउ मेनी मोर डेज पूछ रहा होता, तो आप D2 कर देते आंसर, x बराबर 8। बट ये टोटल डेज पूछ रहा है, तो टोटल डेज तो 10 + 8 18 होगा ना। तो देखो आप 18, x आएगा 8, बट 10 + 8 विल बी द आंसर। इस पर फोकस करना, लोग यहाँ गलती कर देते हैं, 18 इज द आंसर, 18 नॉट 8, 10 + 8। अब देखो वो 2 क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग सिमिलर पैटर्न पे चल रहे हैं। अब फ्रॉम द नेक्स्ट
पार्ट वी विल मूव ऑन टू द टाइप 3. टाइप 3 पर हम लोग चलेंगे, बट थोड़ा सा आप एक बार इसको रिवाइज करो और फिर से जो मैंने ये जो टाइप बताया है टाइप 2 और पुराने वाले क्वेश्चंस को फिर से एक बार ट्राई करो आप. वी विल डिस्कस स्टार्ट फ्रॉम टाइप 3 इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी आप उनको फिर से एक बार प्रैक्टिस करो. अगेन आई एम टेलिंग यू द PDF you will get from the comment section. In the comment box I have pinned the link of my Telegram channel. You can join my Telegram channel from there, and from there you will get the PDF. उससे आप PDF से questions फिर से solve करो without solution देखें उनका. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल एड्रेस इट. अगर आपको वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है या किसी भी पार्ट में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखो. आई विल एड्रेस इट before the next class, and in the next lecture we'll discuss about from start from type 3. So thank you.